Okay. So welcome to all of you into the grammar session, and today I'm going to discuss very important topic that is called the modal verbs. Have you heard about the modal verbs? कभी Yes, सुने हैं modal verbs? they can be requested in requested form. Yeah, sorry. Uh, some way, some type of you can say request. Okay, request forms. Okay. They So are have you ever heard about can, could, may, yes, might, must, or to these verbs? Have you listened? yes, 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 we all have listened these types of verb. So, but we don't know exactly what is the usage of that verb. So today we are going to how to use, where to use. how to use and where to use. Very nice. So today we are going to discuss 10 modal verbs. These are more than sufficient. These are more than sufficient. So modal verbs क्या होते हैं? The verbs that generally used before the main verbs. ये verbs हम कहाँ use करते हैं? Before the main verbs. To express the ability, permissions, necessity, advice, request. yes. Whenever we are doing, हम किसी को we want to express our ability, we want to give or take the permission, we want to show the necessity, we want to give the advice. So in that case we have to use the modal verbs, and if Model. we have to place a modal verb, we have to place a modal verb before the main Main verbs. before the main verbs. Okay, Main verbs. right. So now what are the guys, I just need to now what are the types of the modal verbs? So today we are going to discuss these types of modal verbs. Please note down. Today we are going to discuss these modal verbs. Can, could, may, might, will, shall, would, should, must, ought to. Okay, today we are going to discuss these modal verbs. Now modal verbs का uses क्या होता है? These are all the uses of the modal verbs to show the ability, for the probability, for the permission, for the request. When we talk about the future, when we It is use always in the question, in the form of question. no. We simply make the sentences. We simply make the sentences. Okay, Invitations, suggestions, obligations, imagination. For these purpose, we have to use the modal verbs. Now, okay. let's see. Now, please note down. Very important. Once we have to ask the permission. जब हम किसी से permission लेते हैं, in that case, we have to use the three modal verbs, and the name of these modal verbs are can, may, could. Can, may, could. ओके, अब इन सिचुएशन में हम कैन यूज करते हैं. इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज मे, इन विच सिचुएशन यू हैव टू यूज कुड, दैट वी शुड लर्न. कैन हम यूज करते हैं गाइस कि whenever we are asking the permission where there is no formality. Suppose आप अपने बच्चे से पेन मांगते हो, आप अपने बच्चे से कह रहे हो कि क्या आप मुझे पेन दोगे, आप उसे एक परमिशन ले रहे हो कि क्या आप मुझे पेन दोगे. तो बच्चा है या आपके सिबलिंग्स हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो इन दैट केस यू डोंट नीड एनी formality. You don't need any Formality. 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 So Okay. in that case, you have to use can. So what is the sentence? Can I use your pen? Can I Yes, use your pen when there is no formality? When there yes. is no formality, so in that case, you have to use can I use your pen? Second आता है आपका may. Me. May I use your pen? May हम use करते हैं whenever there is a little formality. थोड़ी बहुत formality होती है. Okay? Yes. Sunanda, you want to say something? Okay, so whenever there is a little formality, so in that case we have to use may. And whenever there is a very formality, very more formal environment, and your tone must be very polite in that case, so then you have to use could I use your pen? Good. Could I use your pen? Okay. सपोज नुपुर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, Hmm. ओके, और आप अपने बॉस से कह रहे हैं कि बॉस क्या आप मुझे लैपटॉप देंगे अपना थोड़ी देर के लिए, कैसे बोलोगे? क्या मैं Uh, आपका लैपटॉप यूज कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? could I use your laptop? हाँ, कुड आई यूज योर लैपटॉप? कुड आई यूज योर लैपटॉप? रुबीना, सपोज करो आप अपनी सिस्टर से कह रहे हो कि मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकती हूँ, तो कैसे बोलोगे? Can हाउ? I use your laptop? हाँ, Can I use your? कैन आई यूज योर लैपटॉप? एंड सपोज करो मनविंदर जी, आप अपनी किसी कलीग से बात कर रहे हो, कलीग से बात कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, एंड यू आर टॉकिंग आस्किंग द परमिशन फ्रॉम योर कलीग, सो व्हाट यू से?
Then I have to say, may I use your, Very good, very good. May I use your lab? yes, Concept is clear? Yes, ma'am. yes. No formality, can. Little Less formality, formality or may. more formality? Me. And very formal environment, then you have to use could. Could. Okay. सपोज आपका कल फ्लुएंसी सेशन है. सपोज करो आप मैम सिमरन मैम से कह रहे हो कि मैम मेरे को आप ये असाइनमेंट एक बार दोबारा से भेजेंगे, तो आप कैसे बोलोगे? Could Could you you send send the the assignment assignment again? Please, हाँ, could you send me the again? assignment again? Could you send me the assignment again? ठीक है. Okay. अब देखो इसके अंदर ना प्लीज लगाने की जरूरत नहीं होती. समटाइम्स व्हाट द मिस्टेक वी डू, कुड यू प्लीज सेंड मी द असाइनमेंट, कुड यू प्लीज. yes, ma'am. जरूरी नहीं होता. I do देयर that इज नो यूज mistake every बिकॉज time. कुड जो है वो ऑटोमेटिकली वी आर यूजिंग इन अ वेरी फॉर्मल एनवायरनमेंट एंड Formally. इफ यू आर स्पीकिंग सो योर टोन मस्ट बी वेरी पोलाइट. Okay. योर टोन कैन नॉट बी हार्श. अगर आप कैन यूज कर रहे हो तो उसमें तो चल जाता है, बट व्हेन यू आर यूजिंग कुड तो टोन मस्ट बी वेरी पोलाइट. मे बी व्हेन यू आर यूजिंग मे, इन दैट केस ऑल्सो योर टोन मस्ट बी पोलाइट. ओके, Okay. क्लियर क्लियर. Yes. अर्चना Yes. क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. नाउ गिव परमिशन. अभी तो था हमारा आस्किंग परमिशन. सेकंड आता है हमारा गिव परमिशन. गिव परमिशन के लिए यू हैव टू यूज कैन और हाँ, आप तो मेरा पेन यूज कर सकते हो. यू कैन यूज माई पेन. यस, यू मे यूज You माई. may. बोथ आर ओके, बोथ आर ओके. Okay. Permission. Okay. ठीक है. नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, एबिलिटी. क्या होता है एबिलिटी का मतलब? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी? We can do. हाँ, कर What सकते I हैं, कर can मतलब, do. सकते. योग्यता आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो स्किल सेट है आपके अंदर I या can do नहीं it. है? यस. हाँ. सो एबिलिटी के लिए यू हैव टू यूज टू मॉडल वर्ब्स. वन इज कैन एंड सेकंड इज कुड. आई रिपीट, वन इज कैन एंड सेकंड इज कुड. सो कैन हम यूज करते हैं फॉर द प्रेजेंट एबिलिटी एंड कुड हम यूज करते हैं फॉर द पास्ट एबिलिटी. प्रेजेंट में मेरे पास वो एबिलिटी, जैसे सपोज करो मैं 2 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ. दिस इज माई एबिलिटी. दिस इज माई एबिलिटी. तो आप क्या बोलोगे? आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस. आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस. अगर सपोज करो आप ये बोलते हो आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस, आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस, उसका मतलब है मैं 2 लैंग्वेजेस बोलती हूँ. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है. लेकिन अगर इसके अंदर आप एक मॉडल वर्ब यूज कर रहे हो कैन, तो इट मीन सामने वाले को पता चल जाएगा कि दिस इज योर स्किल सेट, दिस इज Okay. योर एबिलिटी, दिस इज योर एबिलिटी. ये आपके अंदर एक स्किल सेट है. Yes. माई सिस्टर कैन कुक वेल. माई सिस्टर कैन कुक वेल. माई सिस्टर कुक्स वेल. ठीक है, मेरी जो सिस्टर है वो अच्छा खाना बनाती है. ठीक है, हो सकता है आज बनाती है अच्छा खाना, हो सकता है कल नहीं बनाएगी. बट इफ यू आर यूजिंग कैन तो इट मीन्स योर सिस्टर हैज एन एबिलिटी टू कुक वेल. Cook fry. Okay. पास्ट टेंस, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एबिलिटी, मतलब जो पास्ट में एबिलिटी थी अब नहीं है. आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश वेन आई वॉज लिटल. जब मैं छोटी थी मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाती थी, तो वो मेरे पास्ट में वो मेरे पास एबिलिटी थी. I could. Okay. हाँ, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कुड. Could. Could. Now we are blank. Now you are no, now you can learn, now you can speak. Yes. ठीक है, क्लियर. Yes. तो पास्ट टेंस में Yes. क्या यूज करोगे? कुड. प्रेजेंट Could. टेंस में क्या यूज करोगे? कैन. Can. इन चाइल्डहुड वी कुड प्ले होल नाइट. बचपन Yes. में मैं पूरी रात खेल सकती थी. वो मेरी एबिलिटी थी. पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आती थी, वो मेरी एबिलिटी थी. अब तो मेरे को 10 मिनट तुम जगा दो, मेरे को तो नींद के झटके आ जाते हैं. ठीक है, तो राइट नाउ आई डोंट हैव दैट एबिलिटी, बट इन चाइल्डहुड आई हैड एन एबिलिटी दैट आई कुड प्ले होल नाइट. Yes. Yes. ठीक है, चलो मैंने एक हिंदी में रखे हैं कुछ सेंटेंसेस, एज यू नो इट्स माय फोर्टे. चलो बनाओ इसको जरा. मैं गिटार, चलो वन बाय वन. मनविंदर जी, मैं गिटार Yes. बजा सकता हूँ. I can play guitar. आई कैन प्ले गिटार. एक्सीलेंट. नुपुर, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. I can solve this question. तुम की यू कैन. अच्छा, you can. हाँ. You can solve this question. You can solve this अर्चना, question. पहले लोग बिना मोबाइल के भी आसानी से रह सकते थे. Earlier, people could stay without mobile. Yes, earlier people could stay
easily without Without mobile. mobile. Fine. वेरी नाइस, वेरी नाइस। पहले ये हैबिट थी, अब नहीं है भाई, अब नहीं Hmm. रह सकता। रुबीना, मेरी ग्रैंड माँ बिना स्पेक्स के न्यूज़पेपर रीड कर सकती थी। My grandma can, my okay. My grandma could read the newspaper without specs. हाँ हाँ, Good. एक एक Yes, सेकंड, yes. एक सेकंड। हाँ, सुबर्णा, माय ग्रैंड माँ, Good. हम्म, आगे। Read Can tea, newspaper. ma'am, tea, right? Past now. हाँ, पास्ट है तो कुड आएगा ना। Yes, I told that only. Could, अच्छा could. अच्छा, माय My ग्रैंड माँ grandma, कुड। हाँ, my grandma could read newspaper Without easily, यस, माय ग्रैंड माँ without कुड रीड द न्यूज़पेपर विदाउट uh, स्पेक्स। without specs. ठीक है, वो उनका एबिलिटी था, वो उनका एबिलिटी था। Yes, yes, ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. yes, ma'am. नेगेटिव एबिलिटी में सिंपल है, वेन एवर यू डोंट हैव दैट स्किल, वेन एवर यू डोंट हैव दैट स्किल, सो दैट मीन्स अ नेगेटिव। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, कैन नॉट और कुड नॉट। मैं दो लैंग्वेजेस Cannot, नहीं could बोल not. सकती, ये मेरी एबिलिटी नहीं है। मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू ड्राइविंग। मैं स्विमिंग नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू स्विमिंग। मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकती, बोलो। I cannot speak. I I I cannot can't speak speak fluent English. in आई English. कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, Fluent English. जब मैं छोटी थी तब मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। Hmm. when I was When I small, was, when I was, I I couldn't speak couldn't I English. couldn't speak fluent I English. couldn't speak fluent. I couldn't speak fluently in childhood. I couldn't speak fluently in my childhood. In Yes, my it is. childhood. जब मैं छोटी थी मैं बहुत तेज नहीं दौड़ पाती थी। I couldn't run When, run in my when I was childhood. kid, I couldn't run run fast. I fast couldn't run fast when I was young. Yeah. When I when I was was young. young. I couldn't. Okay. Okay, ठीक है, done. Yes. Yes. Now probability. What do you mean by probability? हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है सबने। No, ma'am. मैडम 46 years हो गया छोड़ी पढ़ाई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, Whether हो भी yes or सकता no, है। chance. हाँ, हाँ. चांस। देखो मैथ्स में मेरे को ध्यान है, वो थे चैप्टर्स 9 10th में। प्रोबेबिलिटी मींस चांस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चांस। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के लिए व्हाट द मॉडल वर्ब्स वी हैव टू यूज 3 मॉडल वर्ब्स, मे माइट कुड। Good. मे माइट कुड, ठीक है। आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट ऑल्सो। सपोज करो चांस जो है वो हमारा बहुत हाई है, इफ द चांस इज वेरी हाई कि भाई वो होगा ही होगा, मतलब 60 to 90% चांस इज वेरी हाई, तो देन इन दैट केस वी हैव टू यूज मे। हमारा चांस जो है वो कम है, 30 to 50% ही है, सो देन वी हैव टू यूज माइट। और न्यूट्रल है ना, मुझे पता है हाई है या नहीं मुझे पता कि वेदर इट इज लो, इन दैट केस आई कैन यूज कुड। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी मे कम बाय कार, शी मे कम बाय कार। इफ यू आर जस्ट यूजिंग शी मे कम बाय कार, देखो हिंदी में सेंटेंस है वह पक्का गाड़ी से आएगी, मुझे पूरी श्योरिटी है वो गाड़ी से आएगी। तो इसको आप कैसे बना सकते हो, अगर सिंपल, अगर आप मॉडल वर्ब्स यूज नहीं करोगे तो हाउ यू विल मेक दिस सेंटेंस। He must come by a car. Because नहीं मे कौन लिखा मैंने नहीं नीचे? नहीं, मैं भूल भूल जाओ। अगर सपोज करो सिंपल, आपको सिंपल मॉडल वर्ब्स नहीं है, आपको पता, आपको सिंपल इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। she will come by She, car. she come by car. She comes by car. शी कम्स बाय कार का मतलब होता है वह गाड़ी से आती है। She आपने will She come by बोला है car. वह पक्का गाड़ी से आएगी। she will come by car. Yes, she will come by car. I am damn sure. I am very much sure she will come by car. Come by Yes. ठीक car. है, ये सिंपल सेंटेंस है। Hmm. But my question is why we are making such a lengthy sentence? अगर if you have the good knowledge of the modal verbs, so then instead of making such a lengthy sentence, what you can say, she may come by car। जैसे ही आपने may You may. लगा दिया तो it is understood कि the chances are very high कि she will come by car। तो इसमें आपको श्योरिटी वर्ड लगाना ये कोई जरूरत नहीं, समझे आप। मे का You may come यूज by कब car. करना है, देखो इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, शी विल कम बाय कार, आई एम वेरी मच श्योर। Sure.
तो अब वो Yes. श्योर वगैरह वो सब वर्ड्स हटा के आपने It सिंपल क्या may कर दिया, come शी by मे car. कम बाय कार. Yes. स्ट्रॉन्ग If पॉसिबिलिटी. if वीक पॉसिबिलिटी 50-50, क्या then है? she might come. If 50-50, हाँ, then she 50 might 30 to come. 50 है, वो आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, चांसेस आ भी Might. सकती है नहीं भी सकती है, लेकिन वीक पॉसिबिलिटी है. तो शी माइट बी एट होम, वे घर पे हो भी सकती So है, घर ma'am, पे नहीं हो सकती. then in this sentence, how can I use could? कुड जब हमारा न्यूट्रल हो, जनरल पॉसिबिलिटी हो, So, जनरल okay. पॉसिबिलिटी हो. ठीक है, ठीक है. हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जब हम श्योर नहीं होते हैं, हमें पता नहीं है कुछ. सो इन दैट केस यू Not कैन sure. यूज कुड. लेकिन आप ज्यादातर हम यूज करते हैं मे और माइट. मे और माइट हम ज्यादा यूज करते हैं. मे हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी, एंड माइट हम यूज करते हैं व्हेन वी हैव द वेरी वीक पॉसिबिलिटी. This possibility. वीक The third 50, not 50. sure लिखा हमने. हाँ, ठीक थर्ड है. जो है अगर यूज भी कर दो Not तो भी sure. ठीक है, लेकिन एक इम्प्रेसिव वे क्या है, मे और माइट जब आप यूज करते हो. Yes. देखो, शी विल कम बाय कार, आई एम डैम श्योर, दिस इज अ वेरी बेसिक इंग्लिश. इसकी जगह अगर आप बोलते हो ना शी मे कम बाय कार, तो ये जो मे, माइट, कुड, ये जो वर्ड्स है ना, डैट यू कैन इजीली इम्प्रेस योर ऑडियंस, क्योंकि इससे जो आपका लेवल ऑफ इंग्लिश है ना वो एकदम अप हो जाता है. After. समझ रहे हो? आर यू गाइस Yes. गेटिंग व्हाट इज द Yes. इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मॉडल Yes. वर्ब्स? Yes, Yes. yes. चलो, आज रुबीना, आज रेन हो सकती है. सपोज करो रुबीना, चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि बादल बहुत, मौसम बहुत खराब है, तो आज रेन हो सकती है. अनम्यूट अनम्यूट रुबीना. अच्छा, रुबीना का तो फास्ट है, ज्यादा नहीं बोल पाती. हाँ, no problem. हाँ, It may rain today. वेरी गुड. इट मे रेन टुडे. और अगर Yes. सपोज करो चांसेस आर वेरी लेस, It might. It might be rain today. इट माइट बी रेन टुडे. Then today, हाँ. या इट माइट रेन, सॉरी, इट माइट बी नहीं आएगा, इट माइट रेन टुडे. It आज might. देखो, it might यहाँ rain पर today. बी, यहाँ Okay. पर जो बी लिखा है ना वो होने की इंग्लिश लिखी है, होना. वह घर पर हो अच्छा. सकता है, तो होने की इंग्लिश अच्छा. होती है बी. Okay, it might rain today. इट माइट रेन टुडे. He might अर्चना, be at home. अर्चना, वे पार्टी Yes, में ma'am. आ सकता है लेकिन पक्का नहीं है. Um, he might come in the party. पक्का ओके. नहीं है तो मैम. हाँ, लेकिन Weak पक्का नहीं है. possible. हाँ, He might come in the party. But not sure. बट नॉट श्योर. लेकिन पक्का नहीं है कि इंग्लिश बना दिया आपने, बट नॉट श्योर. Might. हाँ, But हमने might लिख दिया तो. हाँ, मैं वहीं आ रही हूँ. वेरी नाइस अर्चना एंड मनविंदर, नुपुर डियर. अब लेकिन पक्का नहीं है तो ये मैंने हिंदी में बोला है, लेकिन अगर आप मॉडल वर्ब यूज कर रहे हो ना, तो देन Might. यू नीड टू यूज It नॉट should श्योर, be might. क्योंकि आप यू आर यूजिंग द वर्ड माइट. मॉडल वर्ब आप यूज कर रहे हो. Yes. ठीक तो है. not sure इधर नहीं आएगा. हाँ, तो नॉट श्योर नहीं आएगा. नॉट श्योर को ही तो हम रिमूव कर रहे हैं. Okay. ठीक है. ही माइट कम. Okay. अच्छा, इन द पार्टी नहीं होता. एक तो सबसे पहली बात, ही माइट कम Okay. टू द पार्टी. Okay. टू द पार्टी. And at the party भी आ सकता है. No. नो. Okay. Only to the party. नुपुर, Okay. वे यहाँ हाँ, कभी भी आ सकता है. कभी भी मतलब strong chances है. तो they may come here anytime. ओके. मनविंदर जी. मैंने Anytime वो- नहीं आएगा. He may come. It may, it is definitely. So we use may. They He may. may come here. और वे they may यहाँ come. कभी भी आ सकता है. देखो, अब इसको ना हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स ऑन द चांसेस. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो बोथ द सेंटेंसेस आर राइट. The ma'am, anytime. They may come anytime. दे मे कम हियर एट एनी टाइम. हाँ, लिखना चाहो मतलब मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पॉसिबिलिटी. सिर्फ इतना Possibility. ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे, वीक पॉसिबिलिटी है तो माइट. And if you are not getting anything, whether it is strong, whether it is weak, use could. Okay. गलती सिस्टम में भी हो सकती है. क्या बनाऊंगी इसकी इंग्लिश? There could हाँ, there could be a fault be in a the hopeful system. There could be a fault in the system. system. There could be a fault in the system. There could be fault in Might this. भी नहीं हो सकते मैम. हम्म? Might भी नहीं कर सकते उधर.
देयर माइट बी, चल सकता है रुबीना, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर नहीं समझ आ रहा ना कि स्ट्रांग है वीक है, तो उसको सेफर साइड के लिए यू कैन यूज Good. Good. अच्छा If you are not sure, then Okay. you can use could. हाँ, जब बिल्हान नहीं समझ आ रहा है कि कुड है या सॉरी माइट है मे है, तो देन फॉर द सेफर साइड यू कैन यूज कुड। Good. Yes. ठीक है, ये नेगेटिव है, कैन नॉट, सिंपल है। अच्छा, रिक्वेस्ट, नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स वी आर यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, हाय कविता, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डियर। एक मिनट, ओके, नाउ रिक्वेस्ट, नाउ देयर आर द टू टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट होता है पोलाइट और एक रिक्वेस्ट होता है लेस पोलाइट। पोलाइट और लेस पोलाइट। Let's go. भाई आप रिक्वेस्ट करते हो तो बट ऑब्वियस है यू मस्ट बी पोलाइट, लेकिन एक होता है पोलाइट का लेवल वेरी और एक होता है ओके ओके। So in Yes. that case, if you are asking for something, then in that case you have to use can, could, will, would. You have to use 4 modal verbs: can, could, will, would. When you are requesting someone, so then you are using polite way. Polite way में if you are requesting someone, so then you have to use could. Could you that for me, please? Could you open the window, please? Okay. और अगर सपोज करो इफ यू आर नॉट यूजिंग प्लीज, स्टिल इट इज ओके, कुड यू ओपन द विंडो। कुड यू ओपन द विंडो का मतलब है कि यू आर स्पीकिंग इन अ पोलाइट वे। Polite. मेक श्योर कि योर टोन मस्ट बी पोलाइट। ऐसा ना हो कि टोन बड़ा हार्श है एंड यू आर यूजिंग कुड। अगर ऐसा है, सो देन इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस वर्ड प्लीज। Please. Oh. Okay. आर यू गाइस गेटिंग मी? Yes, Sometimes ma'am. Yes. happens कि ना हम बाय नेचर वी आर नॉट पोलाइट पर्सन, हमारा जो वॉइस है वो बहुत हार्श वॉइस है। बट Yes. इफ यू आर यूजिंग इन दिस वे ओनली, कुड यू ओपन द विंडो, सपोज करो मैं ऐसे बोल रही हूँ, कुड यू ओपन द विंडो, डू यू रियली थिंक सो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ? नहीं, ऑर्डर फॉर्म नहीं में जाता है। हाँ, ऑर्डर फॉर्म में जा रहा है, तो इसको सेफर साइड के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लीज वर्ड लगा दो Please. साथ। अगर आपकी टोन पोलाइट नहीं है, सो देन इन दैट केस यू हैव टू यूज प्लीज। मैम इन चारों में मोस्ट पोलाइट कौन सा होगा? Could, would, मोस्ट can. पोलाइट, देखो नॉन पोलाइट आ गया कैन, डायरेक्ट। वेरी पोलाइट हो गया आप अर्चना, वुड। Would very polite. वुड इज Would you वेरी please वेरी पोलाइट। वुड यू प्लीज हेल्प मी टू रीच दिस लोकेशन। Okay. नॉन पोलाइट होता है कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए ग्लास ऑफ वाटर ला सकते हैं? कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? कुड No. यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? सपोज करो आप अपनी फ्रेंड से बोल रहे हो कि मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आई हो, क्या बोलोगे उसको इंग्लिश में? Can, Please. Could you? can बोलो, Could you? no, कैन please. यू, Can you bring or हाँ will you bring the water for me? विल यू और कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सपोज करो आप अपने मेल कलीग से बोल रहे हो, मेल कलीग से, Would you please bring me a glass of water, please? हाँ Could you? हाँ। अगर सपोज करो, अब देखो No, बॉस से तो please. बोल नहीं, सपोज करो आप आपको बड़े हिकअप्स आ गए, यू आर रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन, यू हैव टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन, और बॉस आपका बिल्कुल साथ में बैठा है, और आप बॉस के पास बिल्कुल पानी की बोतल पड़ी है, और आप अपने बॉस से कह रहे हो कि बॉस प्लीज मेरे को पानी की बोतल दीजिएगा। Would you Would please? Would you please? Would you हाँ, please would you give please glass of pass water? me the Would water you bottle? please? pass Would me you the water please bottle? pass me the water bottle? अच्छा, Yes. ठीक है, समझे? और अगर सपोज करो आपका Please. फ्रेंड बैठा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन उनके साथ एक फिर भी एक थोड़ा सा फॉर्मेलिटी आ जाती है, सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू से, Would Can you you? Will please? you or could can you, you? could you, could you, Could you? Acha. could Could you you? pass me the water bottle? Could you pass me water bottle? Okay. ओके। Okay. और सपोज okay. करो आपके बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, आप उनसे कह रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? Can Could. or Could you will? please? कैन। Can you pass the water हाँ, bottle? कैन यू पास द वाटर बॉटल, कैन यू पास द वाटर बॉटल?
ठीक है, बट द डेज हैव गॉन जब बच्चे इतने सुनते थे। आजकल तो बच्चों के साथ हमें बहुत ज्यादा पोलाइट होना पड़ता है। वही तो। आजकल तो सिचुएशन ही अलग आ गई है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, बॉस के साथ, फिर भी आप थोड़े से नॉन पोलाइट हो सकते हो, बट व्हाट आई हैव सीन स्पेशली द टीनेजर केसेस में, यू मस्ट बी वेरी पोलाइट, अदरवाइज दे वोंट Yes, लिसन, ma'am. True, true. राइट? So true. तो देन यू हैव टू सी अकॉर्डिंगली किसके साथ फॉर्मेलिटी है, किसके साथ फॉर्मेलिटी नहीं है। गाइस, यू हैव टू जस्ट चेक। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ओके, Okay. ओके। नेक्स्ट आता है टॉक अबाउट द फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर के बारे में बात करना है तो एज वी ऑलरेडी नो वी हैव टू यूज विल और शेल। विल और शेल, शेल हम यूज करते हैं आई और वी के साथ, एंड विल हम यूज करते हैं विद ऑल द सब्जेक्ट्स। बट नाउ द डेज हैव गॉन, वी हैव टू यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स। मैं कल पार्टी में जाऊंगी, क्या बनाऊंगी इसकी इंग्लिश? Go I will go tomorrow to the party. आई विल गो टू द पार्टी, to the party. Tomorrow. आई Last विल में गो I टू will द go to पार्टी the टुमारो। party. मैं कल प्रेजेंटेशन दूंगी। I I will will I show will give the presentation give I will tomorrow. give I will presentation I will tomorrow. give the I presentation. will give. आई विल के I बाद क्या shall. बोला है? Give नहीं I होगा मैम, sh- समांतर वर्ड। I shall. I will will show the presentation. present the Tomorrow. presentation. यस I कविता। I I will Ma'am, I present will the show presentation I tomorrow. will show the presentation tomorrow. I will give my presentation tomorrow. ओके, देखो प्रेजेंटेशन के साथ ना बहुत ही एक ब्यूटीफुल वर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड द डिलीवर। Yes. Okay. डिलीवर, Yes, yes, yes. हर चीज में ये गिव का मत यूज कर दो। गिव गिव गिव। Yes. Okay, I will deliver. आई विल डिलीवर द प्रेजेंटेशन। लेकिन हम, वो कहते हैं ना, हम बदलेंगे नहीं। सिर्फ 4 वर्ड्स हमने अपनी डिक्शनरी में याद कर लिए हैं, 5वां हम याद नहीं करेंगे, है ना? तो ये थोड़े से ब्यूटीफुल वर्ब्स हैं, ये थोड़े से याद करो कि जैसे प्रेजेंटेशन वर्ड मैम, है डिलीवर। फ्लाइट क्लास में आते ही हो जाएगा शायद। हाँ, हो जाएगा। मैजिक है ना, मैजिक बैंड है मेरे पास, ऐसे ऐसे करूंगी बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। फ्लाइट सेशन में आएंगे तो कंटिन्यूसली बात करेंगे तो हाँ, इंशाल्लाह हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, It will change everything by you. हाँ, नाउ ऑफर्स। ऑफर्स, Shall I bring you a glass of water? Shall. Can. सॉरी गाइस। ओके, नाउ ऑफर्स। ऑफर्स के लिए जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं, सो अगेन वी हैव टू यूज 2 मॉडल वर्ब्स, वन इज शैल एंड वन इज कैन। वन इज शैल एंड वन इज कैन। yes. शैल हम यूज करते हैं फॉर द मोर फॉर्मल। जैसे ही गाइस फॉर्मल आ रहा है तो आपकी जो टोन है मस्ट बी वेरी रिस्पेक्टफुल, मस्ट बी वेरी पोलाइट। Right. और वेन एवर यू आर टॉकिंग फॉर द कैजुअल फ्रेंडली वे में यू आर ऑफरिंग टू समवन, so then you have to use can. Can. Suppose आप मीटिंग दे रहे हो, यू आर टेकिंग वन मीटिंग, और आपके साथ आपकी कोई कलीग है या आपका बॉस है, एकदम से उनको दैट पर्सन विल स्टार्ट टेकिंग द हिकअप्स, हिचकिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो आप एकदम बोलते हैं ना कि क्या मैं पानी लेके आऊं आपके लिए, क्या मैं पानी Shall लेके आऊं? हाँ, तो आप कैसे बोलोगे उसको? Shall I? Shall I bring Shall I Shall I bring a a glass of glass of water? water, या shall I bring a glass of water for you? Water. Shall I bring a glass of water for Water. you? water? Make sure whenever you are speaking in this way, your tone must be very polite, your tone must be very respectful. ठीक Okay. है? पत्थर नहीं मारने आपको, बड़ा प्यारा सॉफ्टली टोन आपका होना चाहिए। Shall I bring a glass of water for you? Shall we go for a walk? Shall. Shall we go for a walk? क्या हम वॉक पे चलें? Shall we go for a walk? Okay. Can I drop Understood. you home? Can I drop you home? Can मतलब सपोज करो आपको अपनी फ्रेंड को छोड़ना, तो आप अपने उससे पूछ रहे हो कैन आई ड्रॉप यू होम, या बच्चे से पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे को घर छोड़ दूं क्या, आप उसको ऑफर कर रहे हो। सो कैन आई ड्रॉप यू होम, कैन आई ड्रॉप यू होम, कैन आई हेल्प यू विद दिस वर्क, क्या मैं आपकी मदद। अगेन इट डिपेंड्स गाइस, अगर फॉर्मल है यू हैव टू यूज शेल, Shall I? कैजुअल है यू हैव टू यूज कैन। Can. अर्चना,
Make one Yes, ma'am. sentence. Everyone be ready with your one sentence. Apart from this, ये glass of water repeat नहीं होना चाहिए अब. ठीक है? Ready everyone. Yes, Archana, start. Can I help you in your homework? Can I help you in your homework? Okay, great. Next. Anyone? Shall I enter your room? Shall I enter into your room? Shall I enter into your room? Into your room. Okay. Okay. Can I help you with cooking? Shall I help you in cooking? Okay. मतलब Shall एक can अगर हम लोग formal in हाँ अगर फॉर्मल ले रहे हो, casual कैजुअल ले रहे हो तो casual can हाँ तब can. तो casual हाँ, can I help you in cooking? then Can I go for a walk with you? हाँ, can I go for a walk with you? Can I go for a walk with you? Very nice. Can we go for a movie? Can we go for a movie? Very nice. तो but Nupur अगर husband से कह रहे हो ना तो then your tone must be very respectful. Then in that case you can say, shall I go for a movie? ठीक है? Okay, ma'am. वो आजकल बोलता कौन है ऐसे? हाँ आजकल तो बोलते ही नहीं है, आजकल तो सीधा ऑर्डर देते हैं, सीधा ऑर्डर होता है. I really see. I have मैम seen. ऑर्डर के लिए कौन से मॉडल वर्ब यूज करें? यार Wood. कभी ऑर्डर के लिए कौन से यूज करते हैं? आ रहे उस पे भी आएंगे अब हम. ओके, इनविटेशन के लिए हम सिंपल यूज करते हैं वुड. इनवाइट जब भी करते हैं सिंपल वुड यू लाइक टू डांस विद मी? ठीक है. Would you like to have a cup of tea? Would you like to come along? What would you like to have, ma'am? So would हम use करते हैं whenever we are going to invite. Okay. ठीक है, simple है. Very important, suggestions and obligations. Suggestions means और कुछ advice अगर आप दे रहे हैं. So in that case, you have to use 3 modal verbs. One is called should, second is called ought to, and third is called must. Should, ought to, and must. तीनों ही हमारे एडवाइस के लिए, सजेशंस के लिए यूज होते हैं. बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3? यस, ओके. कविता कैन यू कुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट? कुछ कैट लगानी? सजेशंस ही होते हैं थोड़ा सा. मैम You are asking to me? यस कविता. you should Yes, ma'am. visit a doctor. Should for making sentence, I have to make sentence. यस प्लीज गो अहेड. You should go to school ओके. and you ought to respect elders. ओके. You must help poor people. You must help You poor. Okay. You must help poor people, or you should help poor people. Okay. should is okay, ma'am. That is advice. But when we are telling to our children that you must help poor, matlab their responsibility, they must do this. Okay, well Their tried. duty. Yes. Well tried. Okay, Archana wants to say something. Yes, Archana? Ma'am, you should visit dentist Hmm. if someone have toothache. So Okay. we will get and ought to everyone ought ought everyone ought to ought to कंट्री को मतलब लाइक कंट्री की रिस्पेक्ट करना अपनी कंट्री की. Hmm. Everyone should or everyone ought to respect their country. Yeah, Okay. गलत है something चलो wrong. मैं बताती हूँ. Must. देखो सजेशन तो मीन्स हो गया सिंपल, हमारा एडवाइस हो गया. ऑब्लिगेशंस होगी मतलब जब हम whenever we are talking about the responsibilities, duties, so that is called the obligations. तो Okay. in that case we have to use the 3 modal verbs. देखो अब जब हम सिंपल हम बोलते हैं when we are talking in the advice form, भाई ये मेरा सजेशन है, मानना है मानो, नहीं माना तुम्हारी मर्जी है, मैं तो I'm just giving you the suggestion. Simple, I'm just giving you the advice. So in that case you have to use should. Like for example, you should carry an umbrella, it may rain. You should carry an umbrella, it may rain. मतलब it may rain का मतलब
रेन हो बारिश सकती है, चांसेस है बारिश आ 60 to सकती है। 90 चांसेस परसेंट, कितने हैं? चांसेस कितने हैं? हाई चांसेस है, 50 हाई 50 नहीं है। चांसेस हैं, तो भैया हाई चांसेस आर वेरी चांसेस, हाई, बारिश हाई। हो सकती है। तो भैया मैं तुम्हारे को सजेशन दे रही हूँ कि अम्ब्रेला रख लो, यू शुड हम्म कैरी एन अम्ब्रेला। अब ये पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेदर ही शुड कीप और वेदर ही शुड नॉट कीप। ought to हम होत करते हैं गाइस वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉरल ड्यूटीज, जो हमारे एथिक्स से, जो हमारे मॉरल ड्यूटी से रिलेटेड होते हैं। इन दैट केस वी हैव टू यूज ought to। आप बच्चों को स्कूल पे पंचुअल होना चाहिए, भाई ये एक मॉरल ड्यूटी है। अगर वो नहीं होंगे पंचुअल तो हाउ दे कैन लर्न द डिसिप्लिन एंड हाउ दे कैन सर्वाइव इन कमिंग फ्यूचर। हम्म So the students ought to be punctual at school। मैं सिर्फ should नहीं लिख सकती इसके अंदर। should का तो मतलब होगा होंगे तब भी ठीक है, नहीं होंगे तब भी ठीक है, बट ये उनका एक मॉरल ड्यूटी है कि they ought to be punctual at school so that they can learn the discipline। must होता है guys whenever there is a necessity। for example the students must bring ID proof in the examination hall। you cannot Yes. write the student should bring ID। जब भी कभी भी देखोगे अपने रोल नंबर पे हमेशा must लिखा होगा। मस्ट लिखा था। क्यों? अगर स्टूडेंट्स को मैंने शुड लिख दिया तो स्टूडेंट्स कहेंगे मैम ये तो एक एडवाइस था ना, हमने माना नहीं माना वो हमारे ऊपर है। बट इफ यू आर सेइंग कि भैया इफ यू आर यूजिंग मस्ट तो इट्स मैंडेटरी। अगर Mandatory. वो नहीं होगा तो डेफिनेटली दे आर नॉट अलाउड टू अपीयर इनटू द एग्जाम्स, तो उनका पूरा एक Okay. साल वेस्ट हो जाएगा। सो वेन Yes. एवर यू आर शोइंग द नेसेसिटी कि मतलब उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन दैट केस यू हैव टू यूज मस्ट। मस्ट। Yes. क्लियर? डिफरेंस यस क्लियर? मैम। यस मैम यस मैम। शुड हम कब यूज करेंगे? एडवाइस देने। सिंपल एडवाइस, सिंपल एडवाइस, मैं इंडिविजुअल को एक Simple एडवाइस दे रही। ought to ought to moral duty moral duties and must necessity नेसेसिटी। necessity। जैसे ये रीड करो सेंटेंसेस। you should respect your You should respect your teachers. Children ought to obey their इसमें यहाँ पर भी आ parents. सकता था you ought to obey your teachers, ये भी आ सकता था, ought to भी आ सकता था। हाँ, we ought to protect the environment for Means future मैम definitely ये we ought have to to मैं do पहली that. बार सुन रही हूँ मैम। हाँ it's Ma'am, a new word the word when Ought- you have to do must, that is must. must means when it is a You must put necessity। helmet जैसे while you Yes, must yes. wear helmet while writing, you cannot Yes. say कि क्या नाम है you should। No, no. It No, must definitely मस्ट you है, have to क्योंकि do अगर it. नहीं पहनोगे तो मे बी इफ यू विल वेंट सम एक्सीडेंट तो इट विल गिव सम हार्म। ma'am Yes. here you ought to donate blood once a year You ought to donate blood once in a year। Very good, very good। or must you must do a health checkup twice हाँ, once in a month हाँ twice a month। Yes, 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 twice a yes। month Right। मैम Suppose you देखो जैसे ये you सेंटेंस ought लिखा to है। हाँ, 5 times in a हाँ, ये भी होता था कि बच्चों के लिए अगर हम लोग बोलते हैं कि you ought to pray 5 times in a day, लाइक हम लोग नमाज हाँ, पढ़ते हैं हाँ, ना, हाँ, you ought to pray 5 times in a day। क्योंकि ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है। yes yes then I can use that, huh? What must? मस्ट You होता है must. नेसेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल Yes. वी मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट टुनाइट। सपोज करो आपको Yes, डेडलाइन yes, आया yes. हुआ है, डेडलाइन आया हुआ है कि आज 9 बजे तक आपको ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, हम्म, अदरवाइज दिस प्रोजेक्ट वुड बी रिलीज फ्रॉम योर हैंड। तो देन यू कैन नॉट से यू शुड कंप्लीट। शुड का तो मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। बट वेन एवर यू आर शोइंग द डेडलाइन, टारगेट, नेसेसिटी कि मतलब अगर आप ये नहीं करोगे तो देन यू हैव टू face the consequences, so in that case you have to use must। Yes. यस। okay ma'am आफ्टर 40s आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। You must you must keep take care of your health You must your health after 40 after you after must take 40. care of your health after 40s। Yes. ठीक है, क्योंकि नहीं होगा तो गाइस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं यू शुड, ये एडवाइस दे देते हैं। You must. You have to go. you must yes यू मस्ट। ठीक है, क्लियर दिस थिंग? yes Yes. ma'am कविता, आरती, संगीता, सुनंदा, Yes, clear? ma'am.
Yes, ओके ma'am. नाउ कुड एंड वुड नाउ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है हमारे को कुड एंड वुड सबसे ज्यादा जो बिल्कुल। हमारे दिल के करीब होते हैं मैम बस कुड और वुड सिखा दो कहाँ क्या यूज करना होता है ठीक है तो देखो अब कुड एंड वुड के ना आई हैव रिटन सम सिचुएशंस कि इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज कुड एंड वुड देखो कुड और वुड हम दोनों ही यूज कर सकते हैं इन एज अ रिक्वेस्ट फॉर्म में दोनों ही यूज होते हैं बट कुड कहाँ होता है वुड कहाँ होता है दैट यू शुड नो कुड हम यूज करते हैं जब हम हिंदी में बोलते हैं सकते हैं और वुड हम यूज करते हैं जब हम हिंदी में बोलते हैं खोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या आप मेरे लिए यह डोर खोल सकते हैं अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्या आप मेरे लिए ये डोर खोल सकते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या बनाओगे कुड यू ओपन Could द you डोर please? फॉर मी और अगर सपोज करो मैं बोलती हूँ क्या आप मेरे लिए डोर खोलेंगे तो क्या Would you? बनाओगे हाँ, Could Would Would you 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 open the open please? door the for door? me? दोनों ही हमारे किस में यूज हो रहे हैं रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट फॉर्म में। हाँ। ठीक है मैम क्या डिफरेंस आ रहा है फिर दोनों ही डिफरेंस सिर्फ आ रहा है अर्चना सिर्फ बोलने में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर आप सकते हैं वर्ड यूज कर रहे हो ना हिंदी में अगर आप सकते वर्ड यूज करते हो तो मोर पोलाइट। इट्स अ मोर पोलाइट मैम। हाँ कुड हो गया लेस पोलाइट वुड हो गया मोर पोलाइट क्या More आप polite. मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे ओके ओके खोलेंगे तो आप लगा दो वुड एक एक सेंटेंस बनाओ सब could you bring vegetable for me from the market? Could you bring the vegetables for me from the market? Very good, very good, very good. और क्या आप मेरे लिए वेजिटेबल्स लाएंगे तो वुड यू Would चलो you help एक एक me एक एक to सेंटेंस carry the bag? हाँ बोलो Would you help me to carry the bag? would you help me to carry the bag very good very good Could you bring some medicines from the medical medical store store for हाँ me? would you bring Would some medicines from the medical stores for me very good very good both are Would right? both are right You could और can. would both are right एक less polite है एक more polite है Yes, yes. would you help me to shift this Almira? हाँ would you help me to shift this Almira very good Yes. Would Could you you go help to me the to restaurant with me? Rubina Hmm. हाँ yeah, could you help me to clean my room? could you help me To हाँ clean my room? to To clean clean my my. room very good could you help me Yes, to clean my room could you help me to yes. clean my room या रुबीना सपोज करो आप अपने बच्चों को बोल रहे हो कि क्या मतलब Yes. आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई क्या आप अपना कमरा साफ करने में Yes. मेरी मदद करोगे तो कैसे बोलूंगे इसको इंग्लिश में Could you help me to clean my room? नहीं उन्हीं का रूम Your साफ room करना with है me. तुम्हारा रूम तो चकाचक हो रखा है अच्छा Your उन्हीं room with me. उन्हीं का रूम Could उन्हीं का you रूम help तो मैं me to बोलूंगी make a you should keep Ma'am, your clean room clean. मैं तो ma'am, हेल्प नहीं करूंगी ma'am, हाँ हाँ could बोलो you बोलो help me to clean your room with ma'am me? हाँ एक मिनट can we use could you help me to make your room? हाँ बिल्कुल परफेक्ट 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 तो क्लीन वर्ड ही Could हटा you दिया तुमने हाँ वुड यू हेल्प मी टू मेक द रूम वेरी नाइस क्लीन भी वर्ड यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है बस ध्यान रखना कुड और वुड के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए Okay. बस Yes, yes. Ma'am, Understand all the would things. you go to the restaurant with me? वुड यू गो टू द रेस्टोरेंट विद मी हाँ क्या आप मेरे साथ रेस्टोरेंट चलना पसंद करोगे हाँ क्या आप मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगे हाँ। would ठीक है you रुको ये go हस्बैंड को कहना है कि अपनी आप लोगों को बोल रही हूँ। दरानी की तारीफ को कहना है। मैम अगर फ्रेंड से बोलना है मैम yes फ्रेंड से बोलना है कि would you नहीं could you come to shopping with me? हाँ कुड कुड यू बोला है क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकते हैं Yes. हाँ क्या तो आप could मेरे you साथ तो could हाँ you है वैसे चलेंगे क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगे मोर जो अप्रोप्रिएट would वर्ड है ना वो वुड आएगा इसके अंदर Would. चलेंगे okay okay Would you come to the temple with me? वुड यू Yes. हाँ क्या आप मेरे साथ टेम्पल पर चलेंगे वुड यू कम टू द टेम्पल विद मी Yes. All these we understand the method or
ठीक है, ध्यान Click. में सकते हैं तो कुड लगा दो, गे वाला वर्ड आ रहा है तो वुड लगा दो। सेकंड Okay. हमारा यूज होता है कुड और वुड में एज अ पॉसिबिलिटी वर्सेस इमेजिनरी। अगर पॉसिबिलिटी में यूज करना है तो कुड लगाओ, और अगर इमेजिनरी है तो देन यू हैव टू यूज वुड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश हो सकती है, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। अब हम यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस कर रहे हैं कुड और वुड का, तो मे और माइट अभी मत लेके आना माइंड के अंदर, इट कुड रेन। Okay. वही आज ठीक है। और अगर इमेजिनेशन कर रहे हो, यदि सपोज करो सेंटेंस होता है यदि बारिश होती मैं घर पर रहता, मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, मैं घर पे नहीं हूं, मैं बस इमेजिनेशन कर रही हूँ कि यार अगर बारिश हो जाती ना तो मैं घर पे ही रहता, आज ऑफिस की छुट्टी हो जाती। तो दिस इज माई ओनली इमेजिनेशन। सो व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन? इफ इट Would. रेन्ड आई वुड स्टे एट होम, आई वुड स्टे एट होम। at home. ठीक है। इफ इट वुड, Okay. इफ इट रेन्ड आई वुड स्टे एट होम, इमेजिनेशन। Both इमेजिनेशन words का are मतलब coming in this हम्म line. Both words are if coming if in this line. Would and could. Could in the rain, with the rain, and would stay at home. नहीं नहीं नहीं, कुड रेन नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है तो कुड को यूज करो, और अगर इमेजिनेशन है तो वुड यूज करो। ठीक. it rained, yeah, Okay. would stay at home. Okay. ठीक है। अब बनाओ कविता, एक सेंटेंस बनाओ। आई थिंक यू हैव डन द कंडीशन सेंटेंसेस। हाँ, यस मैम। बनाओ वुड का। कौन सी कंडीशन मैम? कोई वुड भी? वुड 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 वुड। Would imagination. यस। हम्म इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, if I I had would have. studied hard, no, if I studied hard, it would have, I would have passed the exam. हाँ, आई वुड Have हाँ, passed the exam. ओके ओके ओके। हाँ, If इफ आई I studied स्टडीड hard, हार्ड I would आई have वुड passed पास। the exam. नहीं, आई वुड हैव की भी जरूरत नहीं है, सिंपल बोलो, इफ आई स्टडीड हार्ड आई वुड पास द एग्जाम। अब मैम सपोज करो, इमेजिनेशन है तो इफ आई वर वर भी हो सकता है, अर्चना, वर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको ना पास्ट इंडेफिनिट, वर भी ठीक है। अगर देखो सेंटेंस होता, सेंटेंस जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये खरीद नहीं, लेता हाँ लाइक जैसे इफ आई कविता वर ने हैव हाँ सेंटेंस कविता ने क्या बनाया है कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। सपोज करो मेरे पास रिजल्ट आ गया और मैं फेल हो गई, लेकिन अब मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ काश अगर मैंने मेहनत की होती। इमेजिनेशन मतलब जो अब रियलिटी में नहीं है, मैं सिर्फ इमेजिनेशन ही कर पा रही हूँ कि काश मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। सो इफ आई स्टडीड हार्ड आई वुड पास द एग्जाम। Pass the exam. Yes. ठीक If है। I जैसे could, जैसे सपोज करो सेंटेंस है जो अर्चना शायद बनाना चाह रही होगी, अगर मैं भारत की प्रधानमंत्री होती तो मैं एजुकेशन पॉलिसीज चेंज कर देती। मैं इमेजिनेशन हूँ भाई, मेरे को नहीं समझ आ रही है एजुकेशन पॉलिसीज क्या है, अब मैं बैठी बैठी इमेजिन कर रही हूँ यार अगर मैं भारत की प्रधानमंत्री होती ना तो मैं ये सारी एजुकेशन पॉलिसीज चेंज कर देती। इमेजिनेशन। तो क्या बनाऊंगी? इफ आई If वर, I were, अब आएगा if अर्चना I वर Word. इसके अंदर। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड चेंज द एजुकेशन पॉलिसीज। मैम क्या बोले, फिर से बोले, इफ आई, वर, WERE। If I अच्छा WERE, हाँ, इफ आई वर, जैसे देखो ऑल दो आई के साथ क्या लगता है? एम was, वाज, वॉज लगता है, वॉज लगता है। लेकिन वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द इमेजिनेशन तो यू हैव टू यूज वर। वेर, वेयर नहीं, वर, वर, were. वर, वर, वर। अगर मैं जिनी से मिली होती तो मैं उससे बहुत सारा पैसा मांगती। दिन का if जो I चला were था। met, if I were met, हाँ, इफ आई if I इफ आई I मेट was I इफ आई मेट विद जिनी me, I would I Ask. would want so many money. आई So वुड many money. आस्क, I आई would वुड ask. आस्क I would ask. आई वुड her, आस्क मनी। सो मैनी मनी नहीं होता, I would मनी मनी होता है। आई वुड okay, आस्क मनी फ्रॉम हिम। I would ask if I could listen to my tragedy. mom, I could listen to my mom. I would be in good position. अगर मैंने Uh, अपनी मम्मी की बात सुनी होती तो मैं आज अच्छी पोजीशन पर होती। मैम yes, ये yes. डायलॉग सबके लिए है मनविंदर जी। या मेरी मम्मी कहती थी ना बीएड कर ले, मैंने सुनी नहीं, अब कहती हूँ ना।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जो आप ये चीज कर रहे हो ना, ये भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी। तो ठीक है, मैं तो वो बना रही ना हम्म। सेंटेंस। इफ अच्छा। आई कुड लिसन हम्म। to my mom, I would be आई वुड बी इन a बेटर teacher. प्लेस। हाँ, आई वुड बी इन बेटर पोजीशन। Okay. ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एज अ पास्ट एबिलिटी वर्सेस पास्ट हैबिट। ध्यान से सुनना। Okay. एज अ पास्ट एबिलिटी वर्सेस पास्ट हैबिट। पास्ट एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? कुड। पास्ट हैबिट के लिए हम क्या यूज करते हैं? वुड। Would. वुड। देखो, अब हैबिट और एबिलिटी में डिफरेंस समझो। एबिलिटी मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी? कर कर सकते हैं, सकना। मतलब हम लोग के कर अंदर सकते, योग्यता। मेरे अंदर वो सकते स्किल सेट था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटी थी, मैं अच्छी स्विमिंग कर पाती थी। मेरे अंदर वो स्किल था जब मैं छोटी थी। सो व्हेन आई हैं। वाज यंग आई कुड स्विम फास्ट। आई कुड Fast. स्विम फास्ट। अब हैबिट, हैबिट का मतलब है वो मेरी सिर्फ एक आदत थी, वो मेरे अंदर स्किल सेट नहीं था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज यंग आई कुड प्ले I विद माय would. फ्रेंड्स एवरी इवनिंग। जब मैं छोटी थी, हर शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। वो मेरी एक हैबिट आदत। थी। दोस्तों के यस। साथ खेलना, गाइस, दिस इज नॉट अ स्किल सेट, दिस इज नॉट एन एबिलिटी, बट Hmm. मेरी एक आदत थी। आर यू गाइस गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द Yes. Yes. एबिलिटी एंड द हैबिट? Yes, ma'am. Yes. Yes. ठीक है। अगर एबिलिटी है तो क्या यूज करोगे? Could. गुड। और अगर हैबिट है तो क्या यूज करोगे? Would. 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 ठीक है, बनाओ एक एक। Would. When I was young, I would waste lot of time. I would waste lot of time. Okay, I would waste lot of time. Okay, मेरी past habit थी। Very good. और could का ही बनाओ अर्चना, सेम। When I was young, I could read. So I could read books very fast, or I could finish one book in a day. हाँ, I could finish one book in a day. Very good. वो मेरी एक ability थी। Ma'am, when I was kid, I could draw like बहुत अच्छा drawing करती थी. हाँ, तो बनाओ इसको When इंग्लिश I में बनाओ। was हाँ, when I was kid, I could draw very nice. I could draw हाँ, हाँ, I could draw nicely. I could draw nicely. nicely. Okay. Nicely. Okay. Past I could draw habit. nicely. This is habit type. Ability ना ma'am. Ability. ये This is ability, ability. ability है तो आपने could Uh, यूज करा, could यूज करा। yes. ठीक है। और good में एक habit बनाओ। Okay. When I was young, I could क्या habit अच्छा, था एक मेरा. सेकंड बनाओ। मैं एक सेकंड में आ रही हूँ guys, एक सेकंड में आ रही हूँ। जब Okay. तक Okay. हरे Okay. हाँ जी भैया। भैया ऊपर है। yes guys. Yes. Shailesh, Hmm. when I was young, Like, I हाँ, could well trained in fine arts.
but now I would. No, don't say, but now. Don't say. Okay, Could का okay. मतलब है Ma'am, कि when I that was your past habit, but now you don't have. But would not able to do same things. No, No, no. ma'am, wrong. when I was kid, I would climb trees. I would So climb everyone. trees. हाँ, that was your Uh, past habit. That was your yes, past habit. Okay, okay. yes. Okay, लेकिन ये this ability भी is हो Would my सकती wrong. read. This is wrong. है। हाँ, एक could का यूज करो, सिंपल could का। I could do well in the fine arts। मतलब that was देखो जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में आपको when I was young ही लिखना है। जैसे लिखो, 2 सेंटेंसेस लिखो। जैसे I could. लिखो, Tell me. Yes, ma'am. मेरी दादी बचपन में मुझे कहानियां सुनाया करती थी। लिखो, मेरी दादी बचपन में मुझे कहानियां सुनाया करती थी। या मेरी My दादी, अच्छा grandmother. बचपन छोड़ो, मेरी दादी हमें रात में कहानियां सुनाया करती थी। Yes. मेरी दादी हमें I- रात में कहानियां सुनाया करती थी। मैं भी सुनाती थी, आप छोड़ दिए। हाँ, एक दूसरा लिखो, ये मैं रात में, मैम रात में कहानियां सुनाया करती थी। My grandmother. मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकती थी। मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकती थी। मैं स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खेला करती थी। मैं स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खेला करती थी। हम हर संडे को हम हर संडे को पिकनिक पर जाया करते थे। स्लो, दोस्तों के साथ खेला करती थी। हाँ, हम हर संडे को पिकनिक पर जाया करते थे। बनाओ जरा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। लास्ट वाला और एक बार बोलिए ना। हम हर संडे को अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक पर जाया करते थे। कुड यूज करोगे फॉर द एबिलिटी, मीन समथिंग व्हेन यू वर एबल टू डू दैट थिंग। And would you have to use when something you used to do regularly, जब आप उस चीज को रेगुलरली किया करते थे। My grandmother would told stories at night. वुड के बाद क्या आता है हमेशा? वुड इज अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ वर्ब पार्टनरशिप रूल किसका लगता है? मदर फॉर्म। मदर फॉर्म। तो टोल्ड इज अ पास्ट फॉर्म, इसका मदर फॉर्म क्या होता है? टेल। टेल। Okay. My 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 grandmother told us. नो, my grandmother would हम्म tell us माय ग्रैंडमदर would tell us a story every night. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मनविंदर जी, माय ग्रैंडमदर वुड टेल। वुड क्यों आया? व्हाई यू हैव यूज द वर्ड वुड? आदत। It क्योंकि is एक हैबिट past. थी, एक पास्ट Habit. हैबिट थी। एक हैबिट थी ये कि मेरी दादी माँ Would रोज मुझे tell कहानियां the stories. मैम एवरी मेरी नाइट। दादी माँ की स्किल नहीं है। हाँ, स्किल नहीं है भाई, कुछ भी भाई, कुछ भी देखो, स्टोरी टेलिंग इज अ स्किल, स्टोरी टेलिंग इज अ स्किल। लेकिन दादी माँ को तो क्या था भाई, कुछ भी स्टोरीज बना बना के एक हैबिट होती थी। ठीक ओके। है। Ma'am, I could run very fast in my childhood. आई I could कुड run. रन, वेरी गुड। आई कुड रन मैम फास्ट। मैम कैन आई राइट ओनली आई कुड रन फास्ट? इज इट नेसेसरी I टू could run. कंप्लीट? आई इट्स कुड, अंडरस्टूड दैट रन वेरी फास्ट। हाँ I वेरी could का run तो very नहीं fast नहीं, in my वेरी हटा दो। childhood. आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। इन आई माई कुड रन चाइल्डहुड। फास्ट इन माई चाइल्डहुड। My childhood. And next is my I would play with my friends after school. I would play with my friends after school. Yes, I would play with my friends after school. क्योंकि वो मेरी एक हैबिट थी। वो मेरी एक हैबिट थी।
सपोज करो ग्रैंड माँ के अंदर, सपोज करो अगर वो स्किल है स्टोरी नरेटिंग का, तो आप उसको कुड भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर ओके, Okay. बोथ आर ओके। And last, हाँ, we would go to picnic every Sunday. क्या We- सेंटेंस क्या था? पहले मेरे को we हिंदी would- में सेंटेंस बताओ। हिंदी में था कि हम सब हम हर संडे अपने मम्मी पापा के साथ मम्मी पिकनिक पापा जाया करते हाँ थे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो हैबिट थी, हैबिट थी, कोई स्किल सेट थोड़ी है पिकनिक जाना, हाँ, वो देख हैबिट थी, would हमारी आदत थी। तो क्या बनाओगे? we would go to Would. picnic every Sunday with our parents. वी we would Would go वी वुड the pic- वी हाँ, वुड we would go to the picnic That every is Sunday habit. We with my could parents. ना। नहीं, With our कुड parents. नहीं, हैबिट है तो वुड Would. आएगा। Would we would would ही go मैम. to picnic every Sunday with parents हाँ, वी वुड गो to the picnic टू द पिकनिक every Sunday with every parents. Sunday with our parents. That was a Habit. habit. That was a habit. Clear? Yes, Yes, ma'am. yes. Yes, ma'am. रिवाइज करना पड़ेगा चलो। सारा कुछ। अच्छा, अब ये हम Ma'am, 4 मॉडल 2 वर्ब्स और o'clock. कर रहे हैं। 4 मॉडल वर्ब्स हम और कर रहे हैं। शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव वाले ना बड़े दिल के करीब होते हैं मैडम, बस ये हैव वाले बता दो तो हम बड़े इंप्रेसिव स्पीकर बन जाएंगे, है ना? चलो, शुड हैव, शुड हैव हम तो देखो मैं, कंफ्यूजन सीख के अच्छे बन रहे हैं ना, हाँ शुड हैव हमें देखो, साइकोलॉजी नहीं सीखनी। इसका लिखो, शुड हैव लिखो। शुड हैव का मतलब हिंदी में लिख लो भाई। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, होना चाहिए था, करना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। मुझे पढ़ाई एग्जाम के लिए पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन I आई should अच्छा have इसका to. इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर बनता है इसका सब्जेक्ट, देन शुड हैव, देन V3 फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है? तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी, बोलते हैं ना, तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी। तो कैसे बनाओगे इसको इंग्लिश में? यू शुड हैव Apologized apologized to her. to To her. her. We should have apologized to her. P3 form. V3 फॉर्म, V3 फॉर्म यूज होएगा शुड हैव के बाद। Okay. करना I चाहिए should था, have. होना चाहिए था। Would have. शुड होना हैव, चाहिए शुड था. हैव यूज Should होगा have. देना। Sorry. I should have to study hard. Studied hard. To आई भी शुड आएगा. हैव स्टडीड हार्ड, स्टडीड V3 फॉर्म यूज होगा। Okay. आई शुड हैव स्टडीड हार्ड, हार्डर भी लिख सकते हो या हार्ड भी ठीक है। आई शुड हैव स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम। Yes. करना चाहिए था, होना चाहिए था। करना चाहिए था, होना चाहिए। Okay. बनाओ एक एक सेंटेंस, हिंदी में बनाओ पहले एक एक सेंटेंस अपना, अपने से रिलेट करना, अपने से रिलेट करना। द सेंटेंसेस प्लीज मेक दैट यू कैन रिलेट विद योरसेल्फ। I should have punctualed much more. हाँ, punctual is not a verb. Okay. So what is the Ma'am, I should have worked hard for my business to improve. I should have worked harder For my business to improve. for my business. I should have worked harder for my business for better improvement. For I better should have. improvement. हाँ, I should Better have studied in convent school. मुझे कॉन्वेंट स्कूल में होना पढ़ना चाहिए था। चाहिए। ये बना रहे हो अर्चना? हाँ जी। मुझे कॉन्वेंट स्कूल से हाँ जी। पढ़ाई करनी नहीं, मुझे कॉन्वेंट स्कूल में चाहिए होना नहीं। चाहिए था। आई शुड पढ़ना हैव, चाहिए था। हाँ आई शुड हैव, I should have studied in. I should have अच्छा, studied in convent school. government ओके school? ओके ओके ओके। मैम पंचुअल का क्या होगा? पंचुअल का पंचुअल होगा सेंटेंस क्या है हिंदी में? मुझे और पंचुअल होना चाहिए था। मुझे होने की इंग्लिश होती है बी, बीई बी। Okay. आई शुड हैव बीन, Been I third form. been. Okay. का I थर्ड फॉर्म हो गया बीन। been आई शुड हैव बीन Punctual. more more punctual. punctual. I should have been more punctual for this job interview. Okay. I should have been more punctual.
क्लियर, शुड हैव होना चाहिए था, करना हो चाहिए गया, था, पर वर्ड मतलब नहीं याद आ रही क्या लिखें। सेंटेंस नहीं समझ आ रही क्या लिखें। चलो ट्राई। आपको सपोज करो मंजिल आपके लिए आपको करना चाहिए था ना, आपको स्पीकिंग स्किल्स पर और टाइम देना चाहिए था। आई शुड हैव मोर टाइम नहीं नहीं, आई शुड हैव मोर Spend. टाइम नहीं, V3 V3 Spend it. V3 आई शुड हैव स्टडीड देना, इन देना की इंग्लिश क्या होती है, देने की इंग्लिश क्या होती है? गिव गिव गिवन का 3 फॉर्म क्या होता है? गिवन। आई शुड हैव गिवन गिवन अच्छा गिवन मोर टाइम ऑन माई इन स्पीकिंग स्किल्स। ऑन Can माय I use spend? I should have spent हाँ, more I time. should have spent. I should have spent more time on my speaking skills. I should have given more time on my speaking skills. I should have given more time. सपोज करो आपका जो हेल्थ है वो काफी हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, तो आप अपनी फ्रेंड को कह रहे हो यार मुझे ना अपनी हेल्थ पर ना और टाइम देना चाहिए था। सो कैसे आई बोलोगे? शुड आई शुड हैव हैव गिवन मोर टाइम ऑन मोर माई हेल्थ, टाइम ऑन माय हेल्थ। ऑन माई Makes sense. Okay. मैम जब हम बोलते हैं आपस में तो बोलने जैसे हम वीडियो बना रहे हैं क्या हिंदी में बता दो, धक धक हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाती है, बॉडी हिलनी शुरू हो जाती है, बोला नहीं तो घबराहट होती है, तो ये हो जाएगा ठीक सब। बिल्कुल हो जाएगा। एटलीस्ट यू स्टार्ट इनिशिएशन ना। यहाँ पर तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बस कैमरे के आगे आ ही नहीं रहे हैं, तो उनको सबको निकालना है उससे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं, पहले लेट कंप्लीट दिस। कुड हैव होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट में एबिलिटी पॉसिबिलिटी लेकिन काम नहीं हुआ। पास्ट में एबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन काम नहीं हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव वन द रेस बट आई फेल। मैं रेस जीत सकती थी लेकिन मैं गिर गई। पॉसिबिलिटी थी पास्ट में रेस जीतने की, लेकिन वो काम नहीं हुआ। सो वेन एवर यू हैव द एबिलिटी, द पॉसिबिलिटी इन द पास्ट बट द वर्क डिडंट हैपन, सो देन इन दैट केस यू हैव टू यूज कुड हैव। तो कैसे बनाओगे? आई कुड हैव, द स्ट्रक्चर इज सेम, सब्जेक्ट कुड हैव एंड देन V3 फॉर्म। मैं रेस जीत सकती थी पर मैं गिर गई, पास्ट टेंस है। आई कुड I हैव could have वन द won the रेस race, but बट आई, I fell. शी कुड हैव हेल्प्ड अस बट शी डिडंट। वह हमारी हेल्प कर सकती थी बट उसने नहीं की। नहीं की। शी कुड हैव हेल्प्ड अस, शी कुड हैव हेल्प्ड अस बट शी डिडंट, बट शी डिडंट। ओके मैम मैं डॉक्टर मैंने बन सकती हाँ थी, भेजोगे आपको, मैंने हम तो रुबीना, प्रैक्टिस हार्ड करेंगे। वर्क नहीं किया। हाँ स्पीक लाउडर रुबीना। मैम मैं डॉक्टर बन सकती थी लेकिन मैंने एक नहीं किया, मेहनत नहीं किया। बट मैंने मेहनत नहीं किया। मैं डॉक्टर बन सकती थी पर मैंने मेहनत नहीं किया। हाँ, वो आपका अंदर एबिलिटी था, वो पॉसिबिलिटी था, लेकिन काम नहीं हुआ। तो कैसे बनाओगे? आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वेरी नाइस, बट इफ आई स्टडीड हार्ड, नहीं 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 इफ आई नहीं But नहीं आई नहीं, but बट वो काम uh, नहीं हुआ। बट मतलब मे बी यू बस कैन से बट आई डिडंट could अपीयर have, फॉर द एंट्रेंस। but I आई did work hard. I didn't, हाँ, but I didn't appear for the entrance, or you can say, but I didn't work hard, I did didn't work. work but I hard. didn't work hard, but I Okay. didn't work hard. Okay. Okay, I could have been the Okay. doctor. Very nice sentence you have constructed, Rubina. Been. I could have been the doctor, but I didn't appear for the interview, but I didn't work hard. Whatever the reason you can say. Okay, ma'am. Thank you. मैम ये हो सकता है आई कुड हैव कंप्लीटेड MBA बट आई डिडंट अपीयर। I could have, I could have completed my MBA, but I डिडंट अपीयर। in the exam. हाँ Yes, I could have completed my MBA, but I didn't appear for the exam. हाँ Yeah, you can say
but I I did was. take it seriously. But I didn't take it seriously. Okay. I unfortunately I am not able to give the exam. But unfortunately, I was. Archana, past में Yes, जाएगा ये ma'am. Yes, पूरा. ma'am. I was. ठीक है, वोट को भी छोड़ते हैं. मस्ट पे आते हैं. whenever you have to show the strong guess in the past. strong guess Definitely. मतलब वो तो जरूर हो गया होगा. आपका guess है that Yes. must be. वह घर से जरूर जल्दी निकल चुकी होगी. वह घर से Yes. जल्दी She must निकल have चुकी होगी. She must have left early. left Same early. structure, subject plus must have plus V3. The ground is wet. The ground जो है वो गीला है. जरूर last night जो है बारिश आई होगी. Right, right. It must have rained last night. She is She is tired. She tired. must She have must worked. have worked all the day. Yes. She must have worked all the day. Okay? Okay, ma'am. Now, I'm just ending this.